एक बहुत डिटेल्ड शेड्यूल देता है आपको ऑलरेडी, तो हम लोग को अपना से एक नहीं बनाना पड़ता है। वी जस्ट नीड टू फॉलो इट रिलीजियसली एंड इफ वी फॉलो इट, वी डू द असाइनमेंट्स, वी डू द क्लासेस, आई थिंक इट्स it's like the best thing for a cat aspirant. VRC is one of the sections which I am very much afraid of. So this time I maintained a daily habit of reading, with through which I was able to approach the RCs with confidence. Because हमेशा हनी सर कहते हैं हर क्लास में कि ये फेस्टिवल सैक्रिफाइस कर लो ताकि अगले साल IIM या अपने ड्रीम कॉलेज में बिताओ। मॉक्स का एक ही है कि गिव इट अच्छे से एंड देन उसके बाद उसको एनालाइज करो। स्कोर को इतना मन पे लगा के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ मॉक। I used to again reattempt all the questions, but without timer. And then I used to see कि मैंने उस टाइम क्या सोचा था और इस टाइम क्या सोचा था, देन मैं अपनी एक्यूरेसी चेक करती थी। एलिट ग्रिड्स ने पूरा एक वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट दिया था फॉर द ओमिट्स का टॉपिक, जो उनका होता है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग वाले और क्वांट्स तो सेम ही रहते हैं। मेरे बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, पर्सनल इंट्रोडक्शन, जैसे कि अबाउट मी, ऑल my strengths, weakness, my achievements, my roles, responsibilities at my workplace, my hobbies, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। I would like to dedicate this success to Elite Grades, because honestly मतलब मुझे जितना डर लगता था कैट से, वो डर काफ़ी कम हुआ है आफ्टर जॉइनिंग एलिट ग्रेड्स। मैं ये बोलूँगी कि अंटिल एटलीस्ट कैट, सिर्फ कैट के बारे में सोचो। प्रोफाइल के बारे में उसके बाद में सोचना। सबसे पहले कैट की परसेंटाइल इम्पोर्टेंट है। First of all, a huge congratulations on securing your MDI Gurgaon Convert. थैंक यू स्नेहा। Share a little bit about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? Yeah, sure. So, I did my 10th and 12th from Kolkata. Then I moved to Noida to pursue BTech in computer science. And after that, I worked at Accenture for around 2.5 years and as an analyst. And now I'm joining MDI Gurgaon in PGDM program. What was your personal motivation behind choosing to pursue an MBA and preparing for CAT? So my personal motivation ये है कि nowadays if we see that managers are required in every aspect of work, even in tech, and personally I wanted to upskill myself, and मेरे को लगा कि अब MBA ही next step है to upskill and move ahead in my journey, and I thought this is the best time to do it with a good amount of work as well. So, since you mentioned that you were working while preparing for CAT, right? So, I would love to know how you balance and stayed consistent with your CAT preparation. या श्योर। सो मैंने एलीट ग्रिड्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था 2023 में, एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड मेरा जस्ट स्टार्ट ही हुआ था माय जॉब रोल विद एक्सेंचर, सो इट वाज काइंड ऑफ हेक्टिक। सो आई वाज एबल टू स्कोर only 85 percentile, not because just the paper was tough, but also I got panicked a lot. But since my journey was with Elite Grids was very nice for the entire 2023, I decided to repeat with Elite Grids as well. So I rejoined Elite Grids in January 2024. I reattempted CAT, and this time I was able to manage my schedule more properly. I was because I knew my mistakes. मुझे मेरे mistakes, मेरा schedule पता था. I was able to balance the class timings as well. और क्योंकि Elite Grids एक बहुत detailed schedule देता है आपको ऑलरेडी, तो हम लोग को अपना से एक नहीं बनाना पड़ता है। वी जस्ट नीड टू फॉलो इट रिलीजियसली एंड इफ वी फॉलो इट, वी डू द असाइनमेंट्स, वी डू द क्लासेस, आई थिंक इट्स like the best thing for a cat aspirant. And yeah, so that the this 2024 went very smooth, and I was able to, I would say, I did my efforts did bore fruit. From which colleges did you receive calls and which are the ones that you have successfully converted so far? Yes, so I received a call from SPJIMR. I have been waitlisted in it. I received call from IIT Bombay, IIT Delhi. I received calls from all the baby IIMs, starting from IIM Udaipur, IIM Tirchi, IIM Ranchi, IIM Kashipur, etc. Received IIM Rohtak, IIM Raipur, and I also received IIFT Kolkata, IIFT Delhi. I also converted them, and I also have converted TIS ODCL. Okay, this was your second attempt, right? As you mentioned. Okay, so can you just tell me what was your percentile then and what is your percentile this year?
Yeah, sure. So in 2023, my overall percentile was 85, and this year, in 2024, it was 98.2. So can you tell me what specific changes did you make in your preparation that helped you to improve your score? Yeah. So one of the changes was that uh, I decided to follow the schedule as mentioned by the faculty. And earlier, I was not very peculiar about my schedule. I used to skip some classes. I used to watch recordings. But this year, I made my mind to follow the class and then watch the recordings as well to clear the concepts. Secondly, I also used to maintain a notebook to write the concepts and revise them on regular intervals, so that my concepts don't rub off with time. Secondly, I also for VRC is one of the sections which I am very much afraid of. So this time I maintained a daily habit of reading, through which I was able to approach the RCs with confidence. And yeah, and I also increased the number of mocks, because I think mocks is very important for a CAT aspirant, because they give a very good idea of the real CAT attempt. And the more number of mocks we attend, the more confidence we gain while writing the real exam. So this time I was able to write almost around 30 mocks with IMS and EG mocks, and I was able to approach the CAT exam with that confidence. ओके, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट एलिट स्किट? कोई आपको रिकमेंड किया था या फिर आप खुद ही ने रिसर्च करके पता लगाए थे? Yeah, a friend recommended me. So, and I also watched the videos of Elite Grids on YouTube, and then I decided to join it. कौन से बैच में जॉइन किए थे और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ था ईजी में? मैंने बैच 1 जॉइन किया था, जो आई थिंक जनवरी या फरवरी में स्टार्ट हो गया था। ओके, कैट प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है। कभी-कभी डिमोटिवेटेड भी फील होता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जब मॉक टेस्ट का फेजेज़ आते हैं, क्योंकि बहुत ही पढ़ाई की है, सब कुछ हो गया, फिर भी स्कोर क्यों नहीं आ रही है, थॉट तो रहता ही है। तो उस टाइम पे या फिर कोई भी टफ डेज़ या चैलेंजिंग डेज़ पे आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे या फिर बैलेंस कैसे रखते थे? डेफिनेटली कैट प्रिपरेशन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एंड वो उस टाइम यही लगता है कि ये 1 साल अगर हम मेहनत कर ले, कुछ फेस्टिवल्स या कुछ पार्टी सैक्रिफाइस कर ले, बिकॉज़ हमेशा हनी सर कहते हैं हर क्लास में कि ये फेस्टिवल सैक्रिफाइस कर लो ताकि अगले साल आईआईएम या अपने ड्रीम कॉलेज में बिताओ। सो वही कुछ-कुछ बातें हमेशा हम लोग को मोटिवेट करती थी कि नहीं, वी नीड टू मूव ऑनवर्ड्स। हम लोग को अपना स्ट्रगल, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, ताकि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी कैन सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, वी कैन कंटिन्यू आवर फन विथ प्राइड। तो कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, वीआरसी एंड डीआईएलआर। तो ऐसा कोई सेक्शन था जो आपको इनिशियली बहुत चैलेंजिंग लगा? हाँ, इनिशियली आई वुड से मेरे को वीआरसी और एलआरडीआई बहुत चैलेंजिंग लगता था। बीइंग एन इंजीनियर, क्वांट मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग स्पॉट ही रहा है। बट धीरे-धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था इन दोनों में। आई वुड लव टू नो आपने वीआरसी और एलआरडीआई प्रैक्टिस कैसे की है कि धीरे-धीरे आप इम्प्रूव हुआ? सो वीआरसी के लिए मैं रोज आर्टिकल्स रीड करती थी। तो उससे आर्टिक क्योंकि जो कैट में आरसीज आते हैं, वो भी हम लोग को फटाफट रीड करके उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम लोग का एक गुड रीडिंग हैबिट होगा, तो वी कैन अप्रोच द क्वेश्चंस जल्दी से, और उनका एक बेसिक आइडिया जल्दी मिल जाता है। रीडिंग हैबिट किया मैंने। सेकेंडली मैंने एलिमिनेशन होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, वो वाला टेक्निक सीखा, जिससे आई वाज़ एबल टू approach the questions with accuracy. And LRDI के लिए ना स्टार्ट एवरी डे, लाइक आई यूज्ड टू डू सेट्स। जैसे कि मैंने टारगेट बनाया था कि आज मुझे 3 या 4 सेट करने ही हैं। ऐसे मैंने रोज रिलीजियसली सेट्स करती थी। और भले ही वो नहीं होता था सॉल्व, आई यूज्ड टू गिव इट टाइम, एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा। तो इससे मेरा लॉजिक रीजनिंग का जो माइंडसेट है वो डेवलप हुआ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अगर नहीं आता है तो हम लोग उसी टाइम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो उस टाइम तो समझ आ जाता है, बट हम लोग का एक माइंडसेट इतना डेवलप नहीं होता। तो आई ट्राइड माई सेल्फ जितना हो सके, एंड देन आई यूज्ड टू वॉच द सॉल्यूशन। तो इससे मेरा धीरे-धीरे अप्रोच बढ़ा, एंड देन आई मूव टू टाइम्ड सेट्स, लाइक विथ टाइमर आई यूज्ड टू सॉल्व द सेट्स। तो उससे मेरा विथ टाइमर वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एलआरडीआई में। ओके, सो जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए तो आपका स्कोर कैसा था? हाई था या लो था इनिशियली? इनिशियली काफ़ी लो था।
बट क्योंकि मुझे मतलब अप्रोच ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में कैसे सॉल्व करते हैं। मैं बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन जंप करती थी। बट धीरे-धीरे मुझे समझ आया। क्लासेस वगैरह में डिस्कस होता था कि मॉक्स के अप्रोचेस वगैरह। देन आई मूव्ड ग्रेजुअली अपवर्ड्स, बट ऐसा भी होता था कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्कोर अचानक से ड्रिप कर जाए। बट मॉक्स का एक ही है कि गिव इट अच्छे से एंड देन उसके बाद उसको एनालाइज़ करो। स्कोर को इतना मन पे लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ इट्स जस्ट अ मॉक। हम लोग को हर मॉक को एनालाइज़ करना चाहिए, उसकी मिस्टेक से सीखना चाहिए एंड देन वी नीड टू मूव ऑन। ओके, अप्रॉक्सिमेटली कितने सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए होंगे आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? लाइक इन 2024 आई गिव 30 टू 40। ओके, बेसिकली आप अगर शॉर्ट में बताएँ कि आप एनालिसिस कैसे करते थे मॉक टेस्ट के बाद? लाइक स्टेप बाय स्टेप कि पहले मॉक टेस्ट दिया, देन आई टूक 30 मिनट रेस्ट, देन गो ऑन विद द व्हाटएवर व्हाटएवर यू डिड, ऐसा करके अगर कुछ बताना है तो? हुँ, तो मैं सेक्शन वाइज़ करती थी, जैसे कि मैं सबसे पहले वीआरसी ही करती थी आफ्टर माय मॉक, बिकॉज़ वीआरसी का बहुत लंबे-लंबे पैसेज होते हैं एंड देन उनको वो क्या माइंडसेट सोच के मैंने उसको मार्क किया था, वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन वो मैं भूल जाती हूँ। अब मुझे मेरे ऑप्शन का वो याद रखना है कि मैंने क्या माइंडसेट किया था और अब मैं क्या माइंडसेट लगा रही हूँ विदाउट टाइमर। इसलिए मैं पहले वीआरसी करती थी। आई यूज्ड टू अगेन रीअटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बट विदाउट टाइमर एंड देन आई यूज्ड टू सी कि मैंने उस टाइम क्या सोचा था और इस टाइम क्या सोचा था एंड देन मैं अपनी एक्यूरेसी चेक करती थी। एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू वॉच द सॉल्यूशन ऑफ द रॉन्ग वन्स एज़ वेल एज़ द राइट वन्स टू नो कि मेरा अप्रोच सही था या नहीं था। इस तरह वीआरसी होता था। फॉर एलआर्ट आफ्टर उसके बाद आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक और मे बी आई यूज्ड टू वॉच एनी अदर रिकॉर्डिंग्स ऑफ एनी अदर क्लासेस। फिर मैं एलआरडीआई के लिए बैठती थी। एलआरडीआई सेम आई यूज्ड टू री-अटेम्प्ट ऑल द सेट्स, 4 या 5 सेट होते थे मॉक्स में। आई यूज्ड टू री-अटेम्प्ट ऑल द सेट्स फॉर द राइट वन्स एज़ वेल आई यूज्ड टू वॉच द रिकॉर्डिंग टू सी कि मेरा अप्रोच सही था या नहीं। एंड अगर कोई डाउट होता था तो फैकल्टी तो थी। और फॉर क्वांट आई यूज्ड टू फॉर द राइट वन्स जिसमें मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ उसको मैं सॉल्व नहीं करती थी। बट जिसके लिए मैं थोड़ी अनश्योर रहती थी और जो मैंने नहीं किया है वो मैं फिर से सॉल्व करती थी, उनका सॉल्यूशन देखती थी। एंड अगर कोई मॉक में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता था जो जिसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है या कुछ अलग उसमें मुझे अच्छा लगा, उससे कुछ मैंने नया सीखा, तो मैं उसको अलग से कहीं नोट करती थी ताकि फॉर फ्यूचर पर्पस मैं उससे गो थ्रू कर पाऊँ। कैट के 30 टू 45 डेज़ पहले का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, तो उस टाइम पे रिवीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप रिवाइज़ कैसे करते थे उस टाइम पे? उस टाइम एज़ आई मेंशन मेरा क्वांट का एक ठो नोटबुक था, मैं उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करती रहती थी। एंड देन हमारे एलिट में सेशंस होते थे, रिवीजन सेशंस, हम लोग वो करते थे जिसका काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही सर रिवाइज़ करवा देते थे, तो उससे बहुत हेल्प मिलती थी। देन आई यूज्ड टू गिव सेक्शनल्स क्योंकि उस टाइम मॉक्स उतना देख के नहीं होता है, सेक्शनल्स दो अपना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस गेन करो, जितना कॉन्फिडेंस मिले उस टाइम। देन आई यूज्ड टू आल्सो अटेम्प्ट द कैट रियल द कैट पास्ट ईयर पेपर्स, तो उससे भी एक तो क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वी कैन डू इट। तो ऐसे करके आई यूज्ड टू स्पेंड। ओके, डिड यू अपीयर फॉर एनी अदर एग्ज़ाम अपार्ट फ्रॉम कैट? यस, आई अटेम्प्टेड स्नैप एंड मैट एंड ज़ैट। उसमें स्कोर कितना आया है? स्कोर या परसेंटाइल? स्नैप में इट्स 99.34, एनमैट में स्कोर था 238 एंड ज़ैट में इट्स 92 परसेंटाइल। Okay, so CAT and OMITs are a bit different. The strategy exam pattern is different. So how did you prepare for OMITs? ओमिट्स के लिए एलिट ग्रिड्स ने पूरा एक वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट दिया था फॉर द ओमिट्स का टॉपिक जो उनका होता है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग वाले और क्वांट्स तो सेम ही रहते हैं। और मॉक्स मैंने दिया था एंड उनका बेसिकली बाकी क्वांट्स वगैरह तो सेम ही रहता है, बस वो लॉजिकल रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट था उससे कर लिया था और मॉक्स, दैट्स इट। ओके, ज़ैट में एक पूरा अलग सेक्शन रहता है, डिसीजन मेकिंग सेक्शन। वो वाला कैसे पढ़ाई किया आपने? वो भी मैंने लिटरेट से ही लिया था। उनका एक अलग से सर लॉन्च करते हैं कोर्स और उनका डिसीजन मेकिंग दैट का आई वुड से कि पास्ट ईयर पेपर्स जो है, वही एक एक सोर्स है जो जिससे हम लोग एक्चुअल पता कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग सेक्शन होता कैसा है दैट का। एंड उसी से उसी के कॉन्सेप्ट से उसी उस वो किस लॉजिक से वो मार्क हुआ है वो आंसर, वो अगर एक बार समझ आ जाए तो दैट्स इट। ओके, सो कमिंग बैक टू द इंटरव्यू स्टेज डायरेक्टली, शेयर हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। क्या-क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए और मॉक इंटरव्यूज दिए थे कि नहीं? पूरा एवरीथिंग। Okay. So my personal for my personal interviews,
I used to follow YouTube ka there is a channel called Study IQS, Study IAS, and then there are newspapers. I used to follow these resources for current affairs क्योंकि ओह! करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए। सेकेंडली मैंने अपना पूरा मेरे बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा पर्सनल इंट्रोडक्शन जैसे कि अबाउट मी ऑल माय स्ट्रेंथ्स वीकनेस माय अचीवमेंट्स माय रोल्स रिस्पांसिबिलिटीज एट माय वर्क प्लेस माय हॉबीज ये सब कुछ बहुत जरूरी है। सेकेंडली एक मॉक इंटरव्यूज दिए थे मैंने एंड मॉक जीडीज मॉक वैट्स दिया था जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई थी। अच्छा तो इंटरव्यू में कोई एक सिचुएशन या क्वेश्चन याद है जो मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पूछते हैं या फिर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है ना इंटरव्यूज तो ऐसा कोई क्वेर्की या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ याद है आपका मोमेंट फिर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था और कैसे हैंडल किए थे वो सिचुएशन? श्योर सो इंटरव्यूज में बेसिकली दे इंटरव्यूअर चेक करता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। या उनको भी सारे आंसर्स नहीं पता होते हैं। उनको बस जानना है कि आप किस कॉन्फिडेंस से एक आंसर बोल सकते हो। तो मुझे पूछा गया था कि अबाउट द द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो किस बेसिस में एक्सेंचर कीप्स हायरिंग इंक्रीजेस द हायरिंग इन इंडिया एंड इट वाज जस्ट अ गेस। तो वो गेस भी लेने में मैं बहुत पैनिक कर गई एंड मुझे सिर्फ एक गेस लेना था बट वही है तो आई लर्नड दैट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कि even if we need to say any objective answers like numbers एक गेस लो एक अप्रोक्सीमेशन बताओ इतना पैनिक करके कुछ नहीं होगा बिकॉज उनको भी खुद नहीं पता है बट तो मैंने ये वाला जो एक्सपीरियंस था आई डिड लर्न फ्रॉम इट एंड मैंने मुझे सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था इन द अदर इंटरव्यू जिसमें मैंने काफी कॉन्फिडेंस से बोला एंड इट वर्कड आउट वेल। तो फाइनली इतना हार्ड वर्क के बाद पूरे साल पढ़ाई के बाद जब फाइनली आपने देखा कि एमडीआई गुड़गांव का कॉल कन्वर्ट हो गया है तो वो रिएक्शन क्या था या फिर फर्स्ट थॉट क्या आया माइंड में? फर्स्ट स्कोर आया कि चलो मतलब मेहनत सफल हुई। बहुत मेहनत करके यहाँ तक 2 साल काफ़ी मेहनत किया था एंड एक टियर 1 कॉलेज मिलना आफ्टर सच हार्ड वर्क इज़ लाइक फील्स वेरी गुड एंड I would I would like to dedicate this success to Elite Grades because honestly मतलब मुझे जितना डर लगता था कैट से वो डर काफी कम हुआ है आफ्टर जॉइनिंग एलिट ग्रेड्स। सेकेंडली ऑफ कोर्स द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है एंड जो आई वुड से जो एक एलिट ग्रेड्स वाज जस्ट नॉट अ कोचिंग मतलब वहां पे मैं हनी सर एकदम मतलब वो भले ही फैकल्टी है बट वो एकदम एक पेरेंटल फिगर की तरह जैसे हम लोग को मोटिवेट करते थे, जैसे हम लोग को बताते थे, तो आई डोंट थिंक सो इट कैन बी कंपेयर्ड टू एनीवन एल्स। So what was your overall experience with elite grade? माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस मतलब बिकॉज़ इन बेसिक से एडवांस यहाँ पे पढ़ाते हैं जो कि मुझे नहीं लगता मतलब कि कहीं भी और एन एस्पिरेंट कैन फाइंड। सेकेंडली मतलब बी इट अ नॉन इंजीनियर और इंजीनियर क्वांट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग अपहोल्ड मिल जाता है बाय द एंड ऑफ द एंटायर जर्नी। सेकेंडली इवन एलआरडी एंड डीआरसी यहाँ का अप्रोच इज डिफरेंट एंड देयर इज आल्सो अ 24/7 ऐप जिसमें आप कभी भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं एंड यू गेट द रिप्लाई विद इन 24 आवर्स जो कि काफी अच्छा है एंड माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस एंड like I feel I would say joining Elite Grids was one of my best decisions जो मैंने लिया तो I'm grateful। ओके तो अगर आपको कुछ एडवाइस देना है किसी कैट एस्पिरेंट को जो लोग इस साल एग्जाम देंगे और आपका वीडियो देखेंगे कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए पूरा साल ताकि अच्छा स्कोर आए और टॉप स्कूल से कॉल्स आए तो आपका सजेशन क्या होगा या फिर एडवाइस क्या होगा? वन ऑफ द सजेशंस है ये कि अच्छे से अपना लाइक लोग ना कैट एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा अपने प्रोफाइल के बारे में सोचते हैं कि मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं है कॉल कैसे आएंगे। मैं ये बोलूंगी कि अंटिल एटलीस्ट कैट सिर्फ कैट के बारे में सोचो प्रोफाइल के बारे में उसके बाद में सोचना सबसे पहले कैट की परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है। तो अभी बस कैट के परसेंटाइल पे फोकस करो रोज अपना शेड्यूल बनाओ शेड्यूल पे फोकस करो। इफ यू कैन डू द लाइव क्लासेस बहुत अच्छी बात है बिकॉज उससे ज्यादा फोकस होता है पढ़ाई बट इवन इफ यू कैन नॉट दो बैकअप मत रखो उस दिन का रिकॉर्डिंग अगले दिन तक खत्म करो
एंड कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहो। टेस्ट दो, वेट मत करो कि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी मॉक्स देंगे, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगा। सिलेबस इज नेवर एंडिंग, बट मॉक्स देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड एक सजेशन ये है कैट एग्जाम वाले दिन के लिए कि जैसे मेरे साथ हुआ, आई आई गॉट अ लिटिल पैनिक्ड इन वीआरसी, बट एज हनी सर ऑलवेज सेज, कंधे झुकने मत देना, बस अपना बैगेज मत लेना प्रीवियस सेक्शन का, जस्ट कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड एंड बाकी सेक्शंस है तुम्हारे हाथ में, उसको फोड़ देना। तो जस्ट कीप डूइंग द हार्ड वर्क एंड द हसल, एंड यू विल डेफिनेटली बोर द फ्रूट्स। That's such a valuable advice, must say. Your journey is a proof that hard work and clarity always pays off. Thank you so much for sharing your amazing journey with us. You gave very nice insights about EG and you share everything about your profile and everything so honestly. Thank you so much for joining. Once again, a huge congratulations on securing a spot at MDI Gurgaon. Wishing you all the very best as you start this exciting new chapter. Thank you so much.